اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی پرتجسس اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ میں اس وقت اپنی شادی کی البم دیکھ رہا تھا۔ شادی کے البم میں نسیم بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی شریک حیات کا جو تصور سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس سے شادی بھی بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں برادری میں شادی کرنے کا رجحان ہے۔ جو برادری سے باہر شادی کر لے اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ نسیم کا تعلق ہماری برادری سے نہیں تھا۔ میں ان تصاویر کو دیکھ کر تصور میں دوبارہ سے شادی والے دن میں پہنچ گیا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار شادی کی تقریب میں موجود تھے۔ میرے دوست بھی میرے ارد گرد بیٹھے مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ مجھے تصور سے زیادہ حسین بیوی مل رہی تھی۔ یار، تم نے تو بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ظہیر نے میرے کندھے پہ اپنے ہاتھ کا زور دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بھائی، اپنی اپنی قسمت ہے۔ زبیر نے زوردار کہکا لگایا۔ اس نے یہ جملہ جان بوجھ کر ادا کیا تھا کیونکہ ظہیر کی بیوی واجبی شکل و صورت کی مالک تھی، جبکہ ظہیر ایک خوبصورت اور سمارٹ نوجوان تھا۔ جب دونوں کھڑے ہوتے تھے تو دونوں کی جوڑی بے جوڑ سی لگتی۔ ہاتھ ہلکا رکھو، ہر وقت اس کا مذاق اڑایا کرتے ہو تم، میں نے ہلکے سے زبیر کے کان میں کہا۔ میری بات پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اس وقت نسیم کی بہنیں کزن دودھ کا گلاس لے کر آئیں۔ گلاس دیکھ کر میں اور میرے دوست چونکے۔ ظہیر مسکرایا اور بولا، دیکھو کس پیار سے دودھ کا گلاس لے کر آئی ہیں، اور تم لوگ ایسے سوچ رہے ہو کہ جیسے دودھ میں زہر ملا کر لائی ہیں۔ لو، سب سے پہلے میں دودھ پی لیتا ہوں۔ ظہیر نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ اس کے دودھ پینے میں میری اور زبیر کی ہمت بھی بڑھی۔ ہم نے بھی دودھ پینا شروع کر دیا۔ گلاس خالی کر کے ان کے حوالے کر دینے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹی تو میں نے ظہیر کی طرف دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ جب دودھ پیا ہے تو انہیں دودھ پلائی بھی دینا پڑے گی۔ ظہیر نے کہا، کیوں بھائی، یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ زبیر نے ان سے ہمت کر کے پوچھا۔ 2000 روپے دینے پڑیں گے، ایک لڑکی بولی۔ ارے باپ رے باپ، یہ رقم بہت زیادہ ہے، کچھ تو رعایت کرو۔ کیوں، 2000 روپے زیادہ ہیں؟ دوسری لڑکی بولی، ہاں بہت زیادہ ہیں، ابھی جوتے چھپائی کی رسم بھی باقی ہے۔ زبیر نے کہا، ٹھیک ہے 100 روپے کم دے دو۔ تیسری لڑکی چہکی، یہ تو تم نے بڑی رعایت کر دی۔ ظہیر نے کہکہا لگایا، ہاں ہاں، انہوں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی ہے۔ زبیر نے کہا۔ اس کی بات پر لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اچھا 1500 روپے دے دو، پہلے والی لڑکی نے کہا۔ نہ تمہاری بات نہ ہماری بات، 1000 روپے لے لو، ظہیر نے چہکتے ہوئے کہا۔ ظہیر کی بات پر لڑکیاں سوچ میں پڑ گئیں اور پھر مان گئیں۔ ظہیر نے 1000 روپے کا نوٹ لڑکیوں کے حوالے کر دیا اور وہ خوشی خوشی چلی گئیں۔ یہ خاص دودھ ہے جو لڑکیوں نے پیش کیا ہے۔ جو دودھ ہم خریدتے ہیں نا، وہ عام دودھ ہوتا ہے، ظہیر نے کہا۔ اس کے پینے سے کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں؟
मैंने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ हम हैं ना। जुबैर ने मेरे कंधे पर थपकी दी। अम्मी जान के चीखने की आवाज़ पर मैं माजी में दोबारा लौट आया और तेज़ी से अम्मी जान के कमरे में गया। अब्बू भी परेशानी के आलम में खड़े थे। क्या हुआ अब्बू? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी अम्मी ख्वाब में डर गई हैं। ख्वाब में डर गई हैं? मैंने पूछा। हाँ, वही ख्वाब नजर आया है। खौफनाक शक्ल की औरत इनकी तरफ बढ़ रही है और तुम्हारी अम्मी का गला घोंट देना चाहती है। अब्बू, हर सूरत अम्मी को किसी अच्छे आमिल को दिखाएं, क्योंकि ये ख्वाब इन्हें बाकायदगी से आने लगे हैं। अक्सर इन्हें अकेले में ऐसा महसूस होता है कि कोई शय है जो इनके साथ चल रही है। काशिफ बेटे, मैंने पहले इस बात का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था, लेकिन अब मुसलसल इस तरह ख्वाब आना और अकेले में किसी शय की मौजूदगी का एहसास होना इस बात की इलामत है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और तुम्हारी अम्मी को किसी आमिल को दिखाना होगा। अब्बू ने कहा। जी अब्बू, इस मामले में सुस्ती ना करें, मैंने कहा। मैं वापस कमरे में आ गया। शादी का तस्वीर का एल्बम पड़ा था। इसे मैंने एक बार फिर उठा लिया। दुल्हन के लिबास में नसीम बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल चीनी गुड़िया लग रही थी। रंग भी इसका दूधियाई था जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। नसीम से दोस्ती भी एक इत्तफाक था। एक दिन मैं घर में फारिग बैठा था। मुझे बैठे बैठे बोरियत का एहसास होने लगा, तो मैंने चंद एसएमएस बनाए और अपने दोस्तों को भेज दिए। एसएमएस किए, मुझे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे, एक एसएमएस आया। आप कौन? मैं ये पढ़कर चौंका। वो नंबर भी नया था। मैंने जवाब में लिख दिया, आप कौन और मुझसे क्यों पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ। जवाब में फिर एसएमएस आया जिसमें लिखा था, आपने चंद एसएमएस मुझे किए हैं, इसलिए पूछा है। मैंने एसएमएस पढ़कर अपने मोबाइल को चेक किया। भेजे गए एसएमएस में एक नंबर वही था में मुझे एसएमएस आया था। जब मैंने नंबर्स को गौर से देखा तो एहसास हुआ जल्दबाजी में ज़ुबैर के मोबाइल के आखिर के 2 नंबर गलत दब गए थे, जिससे एसएमएस ज़ुबैर की बजाय गलत जगह चला गया। गलती का एहसास होने पर मैंने फौरी माजरत का एसएमएस कर दिया। जवाब में फिर एसएमएस आ गया, वैसे आपके एसएमएस अच्छे थे, इसलिए मुझे पसंद आए हैं। ये पढ़कर मैं ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। इस दिन के बाद मुझे जो अच्छे एसएमएस दोस्तों की जानिब से मिलते वो मैं इस नंबर पर भेज देता और जवाब में दूसरी तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता। इस बात को 6 माह गुजर गए थे। मैंने ये जानने की कोशिश ना की और ना ही दूसरी तरफ से जानने की कोशिश की गई। एक रोज़ ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल आया कि कॉल करके देखूं कि जिसे मैं एसएमएस करता हूं वो कौन है। कॉल करने पर एक खूबसूरत आवाज़ कानों में रस खोलती सुनाई दी। आपने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मुझे कॉल कर ही ली। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने कहा, हाँ, मैंने सोचा जिसको एसएमएस करता हूँ इसकी आवाज़ सुन लूँ। फिर कैसी लगी मेरी आवाज़? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आवाज़ बहुत अच्छी है, दिल खुश हो गया है। काश आवाज़ की तरह चेहरा भी ऐसा ही हो। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, चेहरा देखने पर ही पता चलेगा। फिर कब दिखाओगी चेहरा? मैंने कहा, जब तुम्हें फुर्सत मिले आकर देख लेना। वो हंसते हुए बोली, कहाँ देख लूँ? जेब इजाज़त दे तो किसी रेस्टोरेंट में, वरना रेस्टोरेंट ही ठीक है। मैं जल्दी से बोला, ठीक है। फिर जब तुम्हारा दिल करे मुलाकात का वक्त तय कर लेना, लेकिन मुलाकात का वक्त दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान रखना, क्योंकि सुबह मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ
और घर जाने के बाद कुछ देर आराम करती हूँ। शाम में बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाते हैं। बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है। मैंने कहा, हाँ, अब्बू की कमाई में पूरा नहीं होता। मेरा भाई नवीद भी काम करता है, जब कहीं जाकर गुजारा होता है। महंगाई भी तो बहुत हो गई है, इसलिए सब घर वालों को मिलकर काम करना पड़ता है, जब कहीं जाकर गुजारा हो पाता है। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। महंगाई ने गरीब लोगों की सफ़ेद पोशी का भरम खोल कर रख दिया है। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बहुत ही मुख्तसर है, 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। मुझे नसीम कहते हैं। तुम्हारा बहुत ही प्यारा नाम है और मुझे काशिफ कहते हैं। तुम्हारा नाम भी अच्छा है, तुम्हारे एसएमएस की तरह। वो हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हें मेरे एसएमएस ने बहुत मुतासिर किया है। मैंने कहा, हाँ, एसएमएस से इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस सोच और किरदार का मालिक है। वो बोली, मेरे एसएमएस तुम्हें अच्छे लगते हैं, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। मैं 2-3 दिन के अंदर मुलाकात का वक्त बता दूंगा। मैंने ये कहते हुए कॉल बंद कर दी। नसीम से बात करने पर मेरे दिल में खुशी महसूस हुई थी। इस कैफियत को लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। वो रात भी बहुत अच्छी गुजरी। रात भर मैं इसे ख्वाब में देखता रहा। 12 बजे मुझे हसीन लग रही थी। वो मुझे बहुत हसीन लग रही थी। 2-3 दिन कैसे गुजरे मैं ही जानता हूँ। एक एक दिन पहाड़ महसूस होता था। मुकर्ररा वक्त मुलाकात के लिए होटल पहुँच गई। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, इसलिए तय हुआ था कि हम सुबह जो लिबास पहनेंगे इसकी तफसील एसएमएस कर देंगे। मेरी टेबल की तरफ ऐसे आ गई थी जैसे पहले से जानती हो, और मैं भी इसे देखते ही पहचान गया कि ये वही नसीम है। ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करना पड़ा। वो मेरी तरफ झुकते हुए बोली, मैं अभी अभी आया हूँ। मैंने साफ झूठ बोला। मैं हालांकि मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले ही होटल पहुँच गया था। रात भर मुझे नसीम से मुलाकात करने का इश्तियाक वक्त से पहले होटल ले आया था। मैं सोच रही थी कि लेट हो गई हूँ, कहीं तुम्हें मेरा इंतज़ार करके बेजार ना होना पड़े। वो हंसते हुए बोली, इंतज़ार में भी एक लज्जत है, ये वही जानते हैं जो किसी का इंतज़ार करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मुझसे मुलाकात करने से पहले कभी किसी का इंतज़ार का तजर्बा नहीं हुआ आपको। वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बेवकूफ़ी पर घबरा गया। अनजाने में मैंने ये क्या बात कह दी। तीर कमान से निकल चुका था और मुझे अपनी बात को संभालना था, इसलिए संभल कर बैठ गया। अरे, इस तरह घबरा कर तो मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं आप। नसीम बोली, यकीन करो, मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की हो। इससे पहले कभी किसी लड़की का इस तरह इंतज़ार नहीं किया है मैंने वजाहत की। मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी और तुम संजीदा हो गए हो। मैंने यकीन कर लिया कि तुमने कभी किसी लड़की का इंतज़ार नहीं किया। बस। वो मुस्कुराई। नसीम के इस तरह कहने पर मुझे किसी कदर सुकून मिला और मेरे चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। 1 घंटे तक हम होटल में बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते रहे। वो अपने और मैं अपने घर को लौट गए। इस दिन मुलाकात करने के बाद फिर तो मुलाकातों का सिलसिला रुका ही नहीं, चलता रहा। मोहब्बत के अहदो पैमा हुए और फिर हम शादी के मुक़द्दस बंधन में बंध गए। अगरचा मेरी वालदा नसीम से मेरी शादी करने के हक़ में नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरी शादी किसी अमीर घराने में हो जो मुझे कारोबार में सपोर्ट करे और माली तौर पर मुस्तहकम ज़िंदगी गुजार सकूं। इसके बरक्स मैं रुमान परवर साबित हुआ था। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी
खूबसूरत हो, रोमानवी बातों में मेरा भरपूर साथ दे। नसीम की सूरत में ऐसी शरीके हयात मिल गई थी। नसीम का कसूर सिर्फ यही था कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इस बिना पर घर में अक्सर सास बहू में मामूली मामूली बातों पर झगड़ा होता रहता था। मैं जब घर आता नसीम का मुंह फूला होता तो मैं इसे समझा देता, नसीम, तुम वक्त की नज़ाकत को समझा करो। तुम इस घर में नई हो, इसलिए अम्मी जान और तुम्हें दूसरे को समझने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जब तुम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाओगे फिर कोई झगड़ा नहीं होगा और घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। मेरे समझाने का अंदाज ऐसा था कि बात इसकी समझ में आ जाती और इसका मूड फिर से खुशगवार हो जाता। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, सास बहू के दरमियान झगड़ा तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। इसमें ज़्यादा अहम किरदार नसीम का ही था, जो बर्दाश्त का ज़बरदस्त मादा रखती थी। घर का माहौल खुशगवार हो जाने पर मैं बहुत खुश था कि न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई। एक रोज़ दोपहर के वक्त अम्मी जान कमरे में सो रही थी और नसीम किचन में खाना तैयार कर रही थी। न जाने क्या हुआ कि इसके कपड़ों में आग लग गई। नसीम के चीखने चिल्लाने पर अम्मी जान की आंख खुल गई, मगर इस वक्त नसीम का जिस्म 70% जल चुका था। पड़ोसियों की मदद से नसीम को अस्पताल पहुंचाया गया। मोबाइल के ज़रिए मुझे हॉस्पिटल में ही बुला लिया गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह नसीम बच जाए, मगर ये मुमकिन ना रहा। इसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया था। मैं कई माह तक इस सदमे को नहीं भुला सका था। जब तब भी तन्हाई मुयस्सर आती मेरी आंखों के सामने नसीम के दम तोड़ने का मंजर आ जाता। मैं अभी नसीम का गम भुला नहीं सका था कि अम्मी जान की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहने लगी थी। इन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि कोई शय है जो इनके साथ साए की तरह लगी रहती है। ख्वाब में भी अक्सर इन्हें एक औरत जिसके चेहरे पर बाल बिखरे थे वो इन्हें डराती है। ना डरने पर वो ज़ोर से इनका गला दबाती थी। अब्बा जान ने अपने वाकिफ़कार एक आमिल जमशेद को दिखाया और आमिल जमशेद ने बताया कि इन पर किसी रूह का साया है जो अम्मी जान को हर वक्त खौफ में मुब्तला रखना चाहता है। इलाज के ज़रिए से ही रूह से निजात मिल सकती है। अभी अम्मी जान का इलाज शुरू हुए 2 ही दिन हुए थे कि अम्मी जान सोते में चीख मार कर उठ बैठी। इनका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। वो बहुत घबराई हुई थी। खौफ से वो बुरी तरह कांप रही थी। इन्हें इस हालत में देखकर अब्बू और मैं बहुत घबरा गए। अम्मी जान ने बताया कि इस औरत ने धमकी दी है कि मैं अपना इलाज ना कराऊं वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तुमसे क्या चाहती है? अब्बू जान ने पूछा। वो चाहती है कि मैं जब तक जिंदा रहूं सिसकती तड़पती रहूं, जिंदा रहूं लेकिन हर वक्त खौफजदा रहूं, किसी पल मुझे चैन ना आए। अम्मी जान ने बताया, बेगम, इस खबीस रूह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। आमिल जमशेद हमेशा के लिए इस रूह से तुम्हें छुटकारा दिला देंगे। अब्बू ने कहा, वो हमेशा अपना चेहरा बालों में छुपा कर रखती है। आज इसने अपना चेहरा दिखा दिया। ओह मेरे खुदाया, किस कदर खौफनाक चेहरा था। देखते ही मेरा दिल दहल गया था। अम्मी जान ने कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अब्बा जान ने जमशेद को इस रूह की धमकी देने के बारे में ज़रूर बताना। ठीक है, मैंने कहा। हाँ, तुम बेफिक्र रहो बेटे, मैं सुबह होते ही सबसे पहले आमिल साहब के पास जाऊंगा। अब्बू ने यकीन दहानी कराई।
मैं मुतमईन होकर अपने कमरे में चला आया। मेरा ये इत्मीनान आर्जी था कि अब इस खबीस रूह ने अम्मी को दिन में भी डराना शुरू कर दिया था। वो हकीकत में अम्मी जान को ही नज़र आती थी। इस नई सूरत हाल से अब्बू और मैं, हम दोनों ही फिक्रमंद थे। आमिल जमशेद से अम्मी जान का इलाज चल रहा था। उन्होंने हमें भरपूर यकीन दिलाया कि अम्मी जान को इस रूह से निजात मिल जाएगी, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से निजात मिलेगी। इस खबीस रूह ने बहुत ज़्यादा अम्मी जान को तंग करना शुरू कर दिया था। अम्मी जान की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब्बू का मुझ पर दूसरी शादी का दबाव भी ज़्यादा बढ़ गया था। इतवार के दिन अब्बू मेरे कमरे में आए और समझाने की गर्ज से बोले, तुम देख रहे हो ना कि तुम्हारी वालदा की तबीयत किस कदर ख़राब है। ऐसे में घर में किसी एक का रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसा करते हैं कि फूफी निगत को चंद दिन के लिए बुला लेते हैं। मैंने तजवीज़ दी। फिर बेटा चंद दिन के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे? इस घर में एक औरत का मुस्तकिल रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो जाए, इससे ये मसला हल हो सकता है काशिफ, अब्बू ने कहा। अब्बू जान, मैं क्या करूँ? मेरे जहन से नसीम की यादें चिपक कर रह गई हैं। मैं जितना नसीम को भुला देना चाहता हूँ, वो उतना ही ज़्यादा मुझे याद आती है। मैंने कहा, तुम जब तक शादी नहीं कर लोगे, यादें भुलाना भी चाहोगे तो तुम नहीं भुला सकोगे काशिफ। इसका वाहिद हल यही है कि तुम शादी कर लो। मैं इस बारे में सोचूंगा, मैंने जवाब दिया। सोचने का वक्त गुजर गया है, अब तुम्हें अमल करना है। अब्बू ने ये बात इस तरह से कही थी जैसे वो मुझे हुक्म दे रहे हों। मैंने घबरा कर इनकी तरफ देखा और फिर नज़रें झुका लीं। मेरी नज़रें झुकाने को उन्होंने मेरी रजामंदी समझा और मेरे कंधे पर थपकी देते हुए कमरे से निकल गए। मैं भी कुछ सोच ही रहा था कि अम्मी जान की ज़ोरदार चीख सुनाई दी और ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई सहन में गिरा हो। मैं लपक कर वहाँ पहुँचा। अम्मी जान सीढ़ियों से बुरी तरह लुढ़कती हुई नीचे गिरी थी। इनका पूरा चेहरा लहूलुहान हो रहा था, जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। अब्बू भी इनके पास पहुँच चुके थे। काशिफ, मुझे नसीम ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया है। अम्मी जान के मुंह से बेख्तियार जुमला निकला। क्या? मैं नसीम के नाम पर बुरी तरह चौंका था। हाँ बेटे, वो नसीम ही थी। ये कहते हुए अम्मी जान बेहोश हो गईं। हम अम्मी जान को हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर्स ने मरहम पट्टी करके बहता खून बंद कर दिया था। वो होश में नहीं आ रही थीं। अम्मी जान को हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि अम्मी जान के सर में शदीद चोट आई है, इसलिए इनका फौरी तौर पर होश आना मुमकिन नहीं है। ये भी खदशा है कि होश में आते ही वो कोमे में चली जाएं। डॉक्टर्स की ये बात सुनकर हम दोनों बाप बेटे फिक्रमंद हो गए थे कि अब क्या होगा। अम्मी जान की इस बात ने मुझे और भी ज़्यादा उलझन में डाल दिया था कि नसीम ने अम्मी जान को धक्का दिया है। कैसे मुमकिन है एक शख्स जो कि मर चुका हो और वो किसी जिंदा इंसान को धक्का दे? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? ये बात एक मुअम्मा की तरह थी जो अम्मी जान के होश आने पर ही हल हो सकती थी। एक हफ्ता मुसलसल बेहोश रहने के बाद अम्मी होश में आ गई थीं। वो बहुत कमज़ोर हो गई थीं। खासी देर वो मुझे ऐसे घूरती रहीं जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हों। वो पहचान नहीं पा रही थी। मैं भी इनके पास चुपचाप बैठा रहा। फिर उन्होंने खुद ही रोना शुरू कर दिया। अम्मी, क्या हुआ?
کیوں رو رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو کاشف بیٹے، وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ کیا بات ہے امی، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں بہت گناہ گار ہوں، بس تم مجھے معاف کر دو، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ امی کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کاشف بیٹے، مجھے نسیم سے سخت نفرت تھی۔ میں نے تمہارے سنہرے مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا وہ نسیم کے گھر آ جانے سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے وقتی طور پر خاموشی اختیار تو کر لی تھی کہ تمہارے ابا جان کی اس شادی میں مرضی شامل تھی، اور میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں تھی کہ نسیم کو تمہاری زندگی سے کس طرح دور کر دوں۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ اس دن نسیم کچن میں کھانا پکاتے ہوئے نہ جانے کیسے اسے چکر آ گیا، وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ نسیم کے گرنے کی آواز پر میں لپک کر کچن میں گئی۔ نسیم بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مٹی کا تیل اس پر چھڑک کر آگ لگا دی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اس کے خوب شور مچانے پر بھی میں کچن میں نہیں گئی۔ کچن میں جلتے ہوئے نسیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نتیجے میں اس کا 70% جسم جل گیا تھا۔ محلے والے نسیم کی چیخ و پکار سن کر گھر میں داخل ہوئے۔ تب میں بھی لپک کر صحن میں گئی اور محلے والوں کے سامنے ایسی بن گئی کہ میں سو رہی تھی اور نسیم کی چیخ و پکار سن کر بھی بیدار نہیں ہوئی۔ میں نسیم کے پاس موجود نہیں تھی، اس لیے محلے والوں کو بھی یقین آ گیا کہ نسیم اپنی غفلت اور لاپرواہی سے جل گئی ہے۔ نسیم کا انتقال ہو جانے پر وہ مجھے خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ دن میں چلتے پھرتے بھی وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ نسیم میرے آس پاس موجود ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، پھر بھی خواب میں آ کر ڈرانے لگی تھی۔ عامل جمشید سے جب علاج کی بات ہونے لگی تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں اپنا علاج نہ کراؤں ورنہ میرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں نسیم سے خوف زدہ تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ کسی طرح سے نسیم سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ وہ مر کر بھی مجھے اپنی صورت دکھاتی رہتی تھی اور مجھے اس کی صورت دیکھنا گوارا نہ تھا۔ عامل جمشید سے میرا روحانی علاج ہونے پر نسیم کی روح کو شدید غصہ آ گیا۔ واقعہ والے دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی۔ کپڑے پھیلائے ہوئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے چٹیا کو زور سے کھینچا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں ابھی نیچے بھاگنے کا سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اپنا روحانی علاج مت کرانا، مگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہی میری بات۔ مجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے تو نے مجھے جلا کر مار ڈالا، مگر میں پھر بھی پرسکون ہوں اور تجھے برباد کر کے رہوں گی۔ میں ضرور اپنا روحانی علاج کراؤں گی تاکہ تجھ چڑیل کا منحوس چہرہ دیکھنے سے نجات مل جائے۔ میں نے غصے سے کہا، نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی جو اس طرح سخت لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی۔ میری بات پر وہ چراغ پا ہو گئی۔ تو زندہ رہے گی تب علاج کرائے گی نا، میں تجھے اس قابل چھوڑوں گی ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں اپنا دفاع کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی تو وہ بھی میرے پیچھے دوڑی۔ میں نے جیسے ہی سیڑھیوں پر قدم رکھا، اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ میرے سر میں شدید چوٹیں آئی تھیں، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ امی جان کا یہ انکشاف مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا۔ میری بیوی نسیم کی قاتل کوئی اور نہیں
میری اپنی ماں تھی۔ میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس خونی انکشاف کو سن کر ان کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ میں ان کے بیڈ سے ہٹ کر دور ہو گیا۔ میں نے غصے میں اپنی انگلیاں بھینچی ہوئی تھیں۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ میں ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ میں خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی مختلف شاہراہ پر چلتا رہا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے نسیم کا معصوم پیارا سا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ اس قدر اسے جلنے پر تکلیف ہوئی ہوگی۔ کاش میں اس روز گھر پر ہی ہوتا۔ میں کبھی نسیم کو جلنے نہیں دیتا۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا تو میں واپس ہاسپٹل آ گیا۔ اب وہ ایک طرف اداس کھڑے تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ بڑی اداسی سے بولے، بیٹے تمہاری امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ کیسے؟ ابو کیسے ہوا یہ؟ کچھ دیر پہلے وہ بالکل ٹھیک تھیں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کچھ دیر قبل ان کی طبیعت اچانک پھر سے خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز انہیں ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے مگر ان کو بچانے میں ناکام رہے اور وہ انتقال کر گئی۔ ایمبولینس کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب انہیں گھر لے کر جا رہے ہیں۔ تم حوصلہ رکھو اور ہمت سے کام رکھو بیٹا۔ امی جان کے انتقال پر مجھے یہ دوسرا دھچکا لگا تھا۔ پہلا ان کے انکشاف سے جو مجھ پر کربناک انکشاف تھا۔ ایمبولینس میں امی جان کی لاش رکھ دی گئی تھی۔ میں بھی ابو کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ گیا تھا۔ امی جان نسیم کی قاتل تھیں اور نسیم کی روح نے اپنے قتل کا انتقام لے لیا تھا۔ میں دونوں طرف سے ہار گیا تھا، اپنی ماں کو بچانے میں اور اپنی بیوی کو بھی۔ نہ ماں کو مرتا دیکھ سکا تھا اور نہ بیوی کا دکھ بھول سکا ہوں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو خدا را اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر گھر میں جو مائیں اپنی بہوؤں کو ناپسند کرتی ہیں وہ کچھ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی بہوؤں کو وہ عزت اور مقام دیں جو وہ اپنی بیٹی کے لیے سوچتی ہیں، تاکہ ان کی زندگیوں میں ہمیشہ سکون رہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔